Hello everyone, let's start with today's editorial. Industrial growth is still tied to government spends on infrastructure. This is the title. Industrial growth is still tied to government spends on infrastructure. बड़ा सिंपल सा मतलब है, इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी भी लार्जली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। तो चलिए जानते हैं एडिटोरियल में क्या क्या बताया है। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट इज़ आईआईपी की। तो आईआईपी क्या होता है? ये एक मंथली डेटा होता है जो बताता है कि इंडिया का ओवरऑल गुड्स आउटपुट यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, the nation's monthly barometer of goods output, revealed a 10-month low growth rate in June at 1.5%, largely due to the sharp contraction in mining activity by minus 8.7%, 10.3% in June 2024, and electricity output by minus 2.6%, 8.6% in जून 2024। अब इसमें क्या बताया है? जून 2025 में आईआईपी सिर्फ 1.5% से ग्रो हुआ है, जो कि लास्ट 10 सालों का बहुत कम ग्रोथ है, सबसे लो ग्रोथ था। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? माइनिंग सेक्टर में माइनस 8.7% की गिरावट आई और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में भी माइनस 2.6% की कमी आई। तो ओवरऑल इंडस्ट्री स्लो हो गई क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों मिलाकर आईआईपी के 22% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। ओके। द अर्ली ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विथ इट्स erratic and uneven distribution led to waterlogging in large parts of the mining belts in Odisha, Jharkhand and West Bengal, hampering a key economic activity. Ranchi's Regional Meteorological Office has said that Jharkhand recorded 504.8 mm against a normal of 307 mm between June and July 12, but 5 districts were categorized as rain deficient. तो यहाँ अब सवाल ये है कि माइनिंग इतनी गिर क्यों गई? इसका जवाब है मॉनसून। अब यहाँ पे मॉनसून स्टार्ट होने की वजह से माइनिंग यहाँ पे गिर गई। एडिटोरियल कहता है कि इस साल साउथ वेस्ट मॉनसून जल्दी आया पर बहुत अनइवन और इरेक्टिक था। अनइवन मतलब कंसिस्टेंट नहीं था, कभी होती थी मॉनसून कभी नहीं होती थी, तो ये अनइवन था। यहाँ कभी ज़्यादा बारिश कभी बहुत कम। झारखंड में एग्जाम्पल दिया गया जहाँ ओवरऑल रेनफॉल तो 504 mm था, नॉर्मल से भी ज़्यादा, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को रेन डिफिशिएंट बोला गया। इस वजह से कोल माइंस में वाटर लॉगिंग हो गया, पावर सप्लाई डिस्टर्ब हुई और सप्लाई चेन्स ब्रेक हो गई। तो यहाँ क्लाइमेट फैक्टर क्लियरली दिख रहा है, पर यूजुअली इकोनॉमिक डेटा में इसको इग्नोर कर दिया जाता है। The resultant damage to the power distribution infrastructure and disruptions to supply chains may have contributed to the sluggish growth in the industrial output at 3.9% in June, up from 3.5% a year ago. This, in turn, is likely to have led to subdued power demand. While mining and power production collectively make up for almost a quarter, 22.3% of the IIP's weightage. The rest is apportioned for manufacturing activities. The robust growth in capital 3.5%, intermediate 5.5% and infrastructure 7.2% goods output indicates that much of industrial growth continues to hinge
on the government's infrastructure spent. अब माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी तो स्लो हो गई, लेकिन कुछ सेक्टर्स ने ग्रोथ दिखाई, जैसे कैपिटल गुड्स ने दिखाई 3.5% की, इंटरमीडिएट ने दिखाई 5.5% की, इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिखाई 7.2% की। ये दिखाता है कि अभी भी इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ लार्जली गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है। ग्रोथ का मेजर ड्राइवर अभी भी सरकारी प्रोजेक्ट्स ही है। There has been a general reluctance, both in situationally and in public economic discourse in India, to explicitly correlate disruptions in economic activity with climate-related events, especially in official narratives such as the IIP or GDP data releases. The Ministry of Statistics and Program Implementation and the Reserve Bank of India (RBI) tend to frame industrial and economic underperformance in terms of high base effects, supply chain bottlenecks, input cost fluctuations, global demand softening, and domestic consumption contraction. Climate-related disruptions such as mining belts are rarely mentioned in IIP or National Accounts commentary. अब यहाँ एडिटोरियल ये पॉइंट उठाता है कि इंडिया की इकोनॉमिक एजेंसीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या RBI क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज जैसे माइनिंग डिस्ट्रप्शंस या अनइवन मानसून, जिसे हम कम ज़्यादा होने वाला मानसून कहते हैं, को IIP या GDP जैसे डेटा में इंक्लूड नहीं करती, जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तो क्लाइमेट रिस्क को इकोनॉमिक डेटा के साथ मैप करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया है। सी इकोनॉमिक डेटा एजेंसीज इन इंडिया have been slow to integrate climate risk frameworks into routine microeconomic reporting, unlike institutions such as the European Central Bank or the Bank of England, which have begun mapping climate risk to output and financial stability. जैसे मैंने बताया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने क्लाइमेट रिस्क को इकोनॉमिक डेटा के साथ मैप करना स्टार्ट कर दिया है। True, climate attribution is complex. Linking a specific event such as waterlogging in a coal mine to broader climate change involves scientific rigor and probabilistic modeling. Policymakers often avoid this due to fear of politicizing economic data. Indeed, the RBI's financial stability reports now include climate-related risks, but this has not yet filtered into production-side metrics such as the IIP. The time has come for India to make a systematic shift to integrate climate attribution to economic activity. इसका क्या मतलब है? एडिटोरियल भी मानता है कि क्लाइमेट एट्रीब्यूशन यानी किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्लाइमेट से जोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। साइंटिफिक मॉडलिंग लगती है और एग्जैक्ट प्रूफ देना टफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इग्नोर करें। पॉलिसी मेकर्स इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये पॉलिटिकल बैन ला सकते हैं। एडिटोरियल के एंड में ये कहा गया है, RBI ने तो क्लाइमेट रिस्क को अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट्स में इंक्लूड करना शुरू कर दिया, लेकिन ये प्रोडक्शन डेटा जैसे IIP तक अभी नहीं पहुंचा है। तो इंडिया को एक सिस्टमैटिक शिफ्ट की ज़रूरत है, जहाँ क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिंक किया जा सकता है। ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इस एडिटोरियल की इम्पोर्टेंट वोकैबलरी। बैरोमीटर का मतलब होता है कोई मेजर या फिर कोई स्टैंडर्ड, किसी चीज़ को मेजर करने का स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, वो होता है बैरोमीटर। कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिड्यूस होना या डिक्रीज़ होना। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है इरेक्टिक। इरेक्टिक का मतलब होता है इर्रेगुलर, कम ज़्यादा होना।
अनइवन जैसे मैंने बताया आपको, ये भी कंसिस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है या फिर बैलेंस नहीं है। आगे आता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होना, एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होना, उसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। हैम्परिंग, हैम्पर का मतलब होता है टू स्लो डाउन, कम होना, टू डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है रिड्यूस या फिर सॉफ्टेंड, किसी हार्ड चीज़ को सॉफ्ट करना या रिड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हम लोग अपने आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फिजिकल स्ट्रक्चर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मीनिंग होता है अनविलिंगनेस, अनिच्छा, इच्छा ही नहीं है उसमें। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली और ओपनली। नेक्स्ट वर्ड कम्स इज प्रोबेबिलिस्टिक इज द नेक्स्ट वर्ड। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब क्या? जो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कोई हाँ कोई ना, जैसे हम प्रोबेबल कहते हैं कि प्रोबेबली ये हो सकता है, प्रोबेबली वो हो सकता है, तो प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब जो चीज़ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। पॉलिटिसाइजिंग मतलब किसी चीज़ को पॉलिटिकली लिंक करना। ये हो गया फर्स्ट एडिटोरियल का वोकैबुलरी। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट एडिटोरियल। नाउ दिस एडिटोरियल इज़ रियली वेरी सीरियस एंड शॉकिंग। तो इसका टाइटल कहता है डेथ्स इन स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल नीड्स अर्जेंट अटेंशन। ये एडिटोरियल राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल में हुई मौत के बारे में है, जिन्होंने हमें एक डेंजरस रियलिटी दिखाई है। सरकारी स्कूलों की हालत कितनी ख़राब है, चलिए देखते हैं एडिटोरियल क्या कहता है। In July 25, tragedy awaited students of classes 6 and 7 at the Pipalodi Government School in Rajasthan's Jhalawar district as they assembled for prayer. A part of their school building gave way, leading to the deaths of 7 and injuries to several others. Most of the students were from tribal communities. The school is in the southeastern part of the state, bordering Madhya Pradesh. There was a similar incident the next day in Nagpur district, but the school was closed being a holiday. There has been much public anger in the state over the incidents which quite rightly have thrown the spotlight on the government schools. जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के पिपलोडी गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेजेडी हुई। क्लास 6 और 7 के स्टूडेंट्स जब प्रेयर के लिए असेंबल हो रहे थे, तब स्कूल बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। इसमें 7 स्टूडेंट्स की डेथ ऑफ 7 एंड इंजरीज टू सेवरल, मतलब 7 स्टूडेंट्स की डेथ और कई स्टूडेंट्स इंजर्ड भी हुए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। अगले दिन नागपुर में भी सेम इंसिडेंट हुआ, लेकिन स्कूल हॉलीडे होने की वजह से किसी को भी कोई इंजरी नहीं हुई। ये सब इंसिडेंट्स ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है और फोकस लाए हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। As in UDA's 2023-2024 data, there are more than 70,000 government schools in Rajasthan serving nearly 84 lakh students, especially from the poorer, marginalized sections. Of these, some 8,000 schools have been estimated by the Education Department to be in a poor condition. The Jhalawar school was not among the schools identified as being a poor state.
indicating the extent of the problems. एडिटोरियल के डेटा के अकॉर्डिंग राजस्थान में 70,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। इनमें 84 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मोस्टली पुअर और मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड के। इनमें से अप्रॉक्स 8,000 स्कूल्स को पुअर कंडीशन में बताया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से। शॉकिंगली झालावाड़ स्कूल उन 8,000 में इंक्लूडेड भी नहीं था, मतलब रियल सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। Some 650 crore had been allocated in the past two state budgets for boosting the infrastructure, but inefficiencies in government have ensured that the measures did not make much difference. Fixing the infrastructure of government schools should be a priority for the state's Bharatiya Janata Party government. What does this editorial say is, पिछले 2 साल के राजस्थान के स्टेट बजट में अप्रॉक्स ₹650 करोड़ एलोकेट किए गए थे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए, पर सरकारी सिस्टम की इनएफिशिएंसी की वजह से कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ। एडिटोरियल स्ट्रांगली बोलता है कि फिक्सिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी अ प्रायोरिटी ऑफ स्टेट्स बीजेपी गवर्नमेंट। The tragedy in Rajasthan should serve as a wake-up call across India, given the current policy defocus on government-owned education institutions. The National Education Policy (NEP) 2020 had called for an immediate increase in spending on education from some 4.6% of GDP to 6%, identifying one-time spends on infrastructure as the lead priority besides identifying other sectors for a boost in support. 5 years into the NEP, there is little to suggest that this has been a focus area of governments, union or state. अब ये ट्रेजेडी सिर्फ राजस्थान तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, ये पूरे इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है। एडिटोरियल कहता है कि आज के टाइम में सरकारी स्कूल्स नेगलेक्ट हो रहे हैं, स्पेशली जब से फोकस चला गया है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ। आपको याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कहा था एजुकेशन पे स्पेंडिंग 4.6% ऑफ जीडीपी से बढ़ाकर 6% ऑफ जीडीपी तक होना चाहिए और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इमीडिएट बूस्ट होना चाहिए, लेकिन 5 साल बाद भी ग्राउंड रियलिटी बदली नहीं है। Policy thrusts have been more towards reducing government support, self-financing, and encouraging private sector contribution. While these may be applicable to higher education, basic education is a primary duty of the government, as it is across the world, including in the most developed nations. Setting up model schools and funding them to serve as exemplars cannot be at the cost of mass school education. Foundational literacy and numeracy has been identified as a critical area for boosting workforce productivity and reaping the demographic dividend that will soon run its course as India's population ages. But the discourse on the pathways towards achieving them is more pedagogy, non-formal teaching, and so on than the essentials, the infrastructure boost and teacher recruitment and training. अब ये एडिटोरियल ये भी हाईलाइट करता है बेसिक स्कूल एजुकेशन किसी भी सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है, जैसे दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, लेकिन इंडिया में पॉलिसी मेकर्स का फोकस अब गवर्नमेंट स्कूल स्पेंडिंग काम करना, सेल्फ फाइनेंसिंग लाना और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना बन गया है। ये चीज़ हायर एजुकेशन के लिए सही हो सकती है, पर स्कूल लेवल एजुकेशन के लिए डेंजरस है। गवर्नमेंट का मेन गोल होना चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये गवर्नमेंट का मेन गोल होना चाहिए। उसके बाद
टीचर रिक्रूटमेंट भी होना चाहिए, उनका ट्रेनिंग, उनको कैसे सिखाना है, उनको क्या ट्रेन करना है, ये भी गवर्नमेंट का मेन गोल होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है नॉन फॉर्मल टीचिंग पे, डिजिटल सॉल्यूशंस और मॉडलिंग स्कूल बनाने में। एडिटोरियल क्लियरली कहता है ये सब एक्सपेरिमेंट्स तब तक फेल रहेंगे जब तक बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये था एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल जिसमें बताया गया है कि इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स के एज पर है और ये सिस्टम की फेलियर है रिजल्ट, जो हमें इनोसेंट बच्चों की जान के रूप में देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की एज पर है और ये सिस्टम के फेलियर का रिजल्ट है, जो हम इनोसेंट बच्चों की जान के रूप में देखना पड़ रहा है। अब ज़रूरत है रियल एक्शन की, सिर्फ पॉलिटिक्स दिखने की नहीं। अब देखते हैं इस एडिटोरियल की वोकैबुलरी। ट्रेजेडी का मतलब होता है डिजास्टर्स इवेंट, दुर्घटना इन शॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है पुश्ड टू द एज ऑफ सोसाइटी, किसी एक चीज़ का मार्जिन बनाना और उस एज पे जाना। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जाम्पलर्स। एग्जाम्पलर्स मतलब आइडियल एग्जाम्पल्स और मॉडल्स, जिसे रोल मॉडल भी कहा जाता है, या फिर जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है उसे एग्जाम्पलर्स कहते हैं। फाउंडेशनल मतलब बेसिक और एसेंशियल। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम ए यंग पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यंग पॉपुलेशन की तरफ से इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली। पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड। पेडागोजी एक टीचिंग मेथड है। नॉन फॉर्मल टीचिंग, नॉन फॉर्मल मतलब आउटसाइड और रेगुलर सिस्टम्स। नॉन फॉर्मल मतलब जो फॉर्मल नहीं है। तो ये था आज के 2 एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वोकैबुलरी इन डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक PDF डेली देती रहूँगी फॉर वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विथ मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स। हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट इट and go through this video for the explanation of editorial, and let's meet in next video. Thank you.